Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called symmetry. You must be familiar to this topic, but still you should pay attention to every concept. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. Symmetry. So let's get started with what is symmetry. So I will explain you. First, if two or more parts of a figure are identical after folding or flipping, then it is said to be symmetry. So let's take an example. For example, a figure of a butterfly. You can see the figure. If from the center, if we divide it into two parts, it is found to be symmetrical. Next figure is a figure of a tree. From the center, if we divide, then it is also found to be symmetric. Another figure which is an asymmetric figure of a tree. Next, let us take some common examples from day-to-day life, which is an example of a large monument called Taj Mahal, which is found in UP. So it is also symmetrical from center. Next, when we see certain figures with evenly balanced proportions, we say they are symmetrical. Another example is from Tamil Nadu, Thiruvannamalai temple from Tamil Nadu, which is found to be symmetrical. Next topic is line of symmetry. What is line of symmetry? It is an imaginary line which divides the image into two equal halves. So the line of symmetry could be horizontal, vertical or diagonal. There could be one or more than one line of symmetry in a figure. There are of many types. First, one line symmetry means एक लाइन ही होगी सिमेट्री की. जैसे एग्जाम्पल स्क्वायर में अगर हम देखें तो ये जो फिगर है इसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि सेंटर से पास हो रही है. स्टार वाले फिगर में भी सेंटर से सिमेट्री पास हो रही है. ट्रायंगल में सेंटर से और एरो में भी सेंटर से पास हो रही है. नेक्स्ट, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. In this case, figure is symmetrical only about two lines. The lines may be vertical and horizontal lines as viewed in letter H and X. There are example of two figures which are H and X. H को जब हम center से divide करेंगे तो भी हमें symmetry मिलेगी और about axis से divide करेंगे तो भी symmetry मिलेगी. Same ऐसा ही केस हम लेंगे X के figure में भी. Next होती है infinite lines. वो figure जैसे circle का example लेंगे हम, उसमें infinite lines of symmetry हमें मिल सकती है. Some figures may have one or two but infinite lines passing through the center and the figure is still symmetrical. जैसे कि example आपको दिख रहा है सामने circle का. Next, what is regular polygon? Regular polygon, if all the sides and angles of a polygon are equal, then it is said to be a regular polygon. Example, equilateral triangle and square, etc. So let's take an example of an equilateral triangle. In equilateral triangle, how many sides are there? 3 sides. And there are also 3 lines of symmetry. Next, let us take an example. So here is a figure. Copy the figure with punched holes and find the axis of symmetry for the following. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें दो सेंटर्स दिए हुए हैं, दो पंच होल्स दिए हैं. अब इस फिगर में हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है. तो इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होगी? सेंटर से, जिससे कि हमारा जो फिगर है वो सिमेट्रिकल दिखाई देगा. सिमेट्रिकल मतलब सिमिलर. नेक्स्ट, हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल. इसमें है कॉपी द फिगर विद पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग. तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? डायगोनल, क्योंकि डायगोनल से दोनों जो पंच होल्स हैं वो इक्वल दिखेंगे और दोनों, अगर उस फिगर को हम फोल्ड कर देते हैं डायगोनल के अबाउट तो फिगर सिमेट्रिकल दिखेगा. नेक्स्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हम निकालेंगे तो वो 4 ही आएंगी. 2 होती है डायगोनल्स और 2 होती है सेंटर के अबाउट, मतलब मिड पॉइंट. एजेस का जो मिड पॉइंट होता है वहां से अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगी. तो ऐसे टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 4. नेक्स्ट, रेगुलर पेंटागन. पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5. और इसमें जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो हर एक एज के मिड पॉइंट से निकलती है और डायगोनल से. तो वो हम लेंगे, कितनी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री? 5. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिमेट्री. देयर आर several टाइप्स ऑफ सिमेट्री which are first रिफ्लेक्शन और लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकंड रोटेशनल सिमेट्री, थर्ड पॉइंट सिमेट्री, फोर्थ ट्रांसलेशनल सिमेट्री, फिफ्थ हेलिकल, सिक्स ग्लाइड रिफ्लेक्शनल एक्सेट्रा. लेकिन हम मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं. वो है फर्स्ट रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सेकंड है रोटेशनल सिमेट्री, जो जनरली जिससे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे.
First, reflection symmetry. What is reflection symmetry? If we draw a dotted line which gives the mirror reflection of the other half of the image, then it is reflection symmetry. एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में जो दिया है स्टार टाइप का फिगर, एक्चुअली वो स्टार नहीं है बट जो फिगर है उसमें हम देखेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रही है. अगर हम उसको सेंटर के अबाउट फोल्ड कर ले तो उसे बोलेंगे फोल्डिंग लाइन. और नेक्स्ट है मिरर लाइन. मिरर लाइन मतलब जैसे हम कांच में देखते हैं इमेज फाउंड होती है, वो है इसकी मिरर लाइन जिसके अबाउट फिगर सिमेट्रिकल होता है. नेक्स्ट, रोटेशनल सिमेट्री. व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? इफ a figure is rotated about a center point and it still appears exactly as it did before the rotation, it is said to have rotational symmetry. अब हम फिगर के थ्रू देखेंगे. हमने पिछले फिगर में समझा था कि फोल्डिंग लाइन और मिरर लाइन क्या होती है. रोटेशनल सिमेट्री में हमें कुछ नहीं, सेंटर के अबाउट उसे 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और जितनी सिमेट्री मिलेंगी उसे हम बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री. लेट अस टेक एन एग्जांपल. The following figure have more than one line of symmetry. Such figures are said to have multiple lines of symmetry. वो फिगर जिसमें हमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि फिगर आप देख रहे हैं. नेक्स्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल. Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetric about a diagonal. Is there more than any one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? हाँ, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. ये फिगर आपको चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है. इसमें कुछ स्क्वायर्स ड्रॉड है और कुछ स्क्वायर को हमें ड्रॉ करना है. बेसिकली जो शेडेड आपको एरियाज दिख रहे हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं जो कि ब्लैक ब्लॉक्स. अब हमें दिखाना है कि किस तरह हम इसे डिवाइड करें कि फिगर सिमेट्रिकल दिखे. हम अब देखेंगे, हम शेड करेंगे और फिगर्स को. तो इसमें जब हम ब्लॉक शेड करते हैं तो हमें ये इस टाइप का फिगर मिलता है. तो फिगर जो हम देखेंगे उसमें हमें मिलेगा कि हाँ ये सिमेट्रिक है दोनों डायगोनल्स के क्रॉस. नेक्स्ट, देयर इज मोर देन एनी वन वे सो एज टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट ए डायगोनल एज वी कैन चूज एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल. हम दोनों डायगोनल्स के थ्रू ले सकते हैं स्क्वायर की, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिगर सिमेट्रिक है. आइडेंटिफाई 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री. हमें ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो. तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं पैरेललोग्राम का. पैरेललोग्राम हमें पता है इसकी कोई साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बस ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो इस केस में हम किसी भी ऐसी लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते जिससे फिगर सिमेट्रिकल मिले. नेक्स्ट, अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती क्योंकि हमें पता है ट्रेपेजियम की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन सारी साइड्स पैरेलल नहीं होती, सिर्फ कोई 2 ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है. तो इसमें भी हमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. नेक्स्ट, स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल व्हिच हैव नन ऑफ इट्स साइड्स इक्वल. सो इसमें भी हमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. नेक्स्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल. व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या होती है? अ सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन. जैसे कि हम मिरर में देखते हैं और सिमेट्रिकल चीज दिखे तो उसे बोलते हैं हम reflectional symmetry. So let us take an example. Here, यहाँ पर हम alphabets देख रहे हैं, alphabet A, alphabet H, alphabet I, alphabet M. तो अगर हम इसमें reflectional symmetry देखें और vertical mirror लगाएं बीच में तो हमें ये symmetrical figures दिखेंगे. Next letters है O, T, U, V, W, X, Y. इसमें भी हम center के about अगर vertical mirror लगाएं तो भी हमें symmetry मिलेगी. So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.